Today I will be speaking on the emergence of rural and urban settlements in Indian subcontinent. How in the very ancient the settlements developed. From the very beginning there were few settlements, and then gradually they developed into I should say bigger settlements, and the bigger settlements they were called urban centers. How the urban centers, how the village settlements got designated as urban centers. I have given you the matter regarding understanding how rural settlements they get converted to the urban centers. So the material which I sent everyone of this group, a 10-page material I sent, and I hope the students would have studied it. And as per that literature, we find that in the beginning, as I told, very sparsely populated settlements emerged, and these sparsely populated settlements, then they gradually conglomerated. There is a word conglomeration, means they coalesced together, they joined together, and then they formed something like bigger settlements. And the bigger settlements, gradually bigger settlements that gave birth to the urban settlements. And as per the material which I had sent you, everyone, they have defined about the urban center. They have categorized different urban centers, and they have also given the like clustered settlements in the northeastern states. They have mentioned about the clustered settlements in the northeastern state, and also they have given the heading semi-clustered settlements. And then they have discussed about dispersed settlements. Dispersed means that which is scattered. Dispersed means scattered. Dispersed settlements in Nagaland they have mentioned. And then they have discussed about urban settlements, and the next they have discussed about evolution of towns in India. How towns evolved. And under that, they have discussed ancient towns, medieval towns, and modern towns. The writer says that there are number of towns in India having historical background spanning over 2000 years. Most of them developed as religious and cultural centers. Varanasi is one of the important towns among these. Prayag, Pataliputra, Madurai are some other examples of ancient towns in the country. I think everyone is understanding. Is there any problem? Is there any student or some students who cannot understand whatever I am saying? If it is so, one may just say that yes, I am not understanding what you are saying. And if you are not saying, then I presume that everyone is understanding. And then under medieval towns, the writer has written about 100
of the existing towns have their roots in the medieval period. Most of them developed as headquarters of principalities and kingdoms. These are fork towns which came up on the ruins of ancient towns. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur. The writer mentions about the medieval towns, and there Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur, they are mentioned. So sometimes one may ask, can Delhi only be described as something like a city which came into existence in medieval period? Can one trace the antiquity of Delhi in pre-medieval period? So this is a question, something like the historians or those who are the archaeologists, they discuss about the particularly Delhi, how the ancient sites are there, pre-medieval period sites are there. Just I know that my students are very curious and if I may allow to say, they are innocent, means they are trying to understand things. And there are students who have history background. Can anyone tell something about the ancient name of Delhi and how Delhi was? Yes, Pushpita, please tell. Indraprastha, yes. There are different theories about how Delhi came into existence that on the internet you will find. Likewise, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur, they have developed as medieval towns very much because of their being the political centers, the power centers in medieval India. And now the writer discusses about modern towns. The British and other Europeans have developed a number of towns in India, starting their foothold on coastal locations. They first developed some trading ports such as Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. The British later consolidated their hold around three principal nodes: Mumbai, Bombay, that is presently called Mumbai, earlier it was Bombay, then Chennai, earlier it was Madras, and Kolkata, or Kolkata, earlier it was pronounced in a different way, Calcutta. And built them in the British style. Rapidly administrative and military areas developed around them. Towns based on modern industries also evolved after 1850. Jamshedpur can be cited as an example. After independence, a large number of towns have been developed as administrative headquarters. Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhinagar, Dispur, etc. and industrial centers such as Durgapur, Bhilai, Sindri, Barauni. Some old towns also developed as satellite towns around metropolitan cities such as Ghaziabad, Rohtak, Gurgaon, around Delhi. With increasing investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed all over the country. So, instead of reading all these things, I think it would be something like a very sterile exercise to keep on reading. May I ask someone from you, the students who have got the note about urbanization, to read on my behalf for the students? Aishwarya Gupta, are you there? Yes, sir. Can you read the paper which I have given from the point where I have left, that is urbanization in India?
Can you get that? The paper which was titled Typology of Settlements, and there urbanization in India there is written. Could you get it? So just a second. Urban settlement. Actually, before that there is urbanization in India. It is just beyond table 4.1, Trends of Urbanization, 1901-2011. That is, a table is given there regarding the growth of urbanization from 1901 to 2011. Have you reached there? Yes, sir, page number 36. Yes, Ankit, you have reached. So can you read it? Yes, Urbanization in India? Yes, sir. Please read it. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population. The level of urbanization in India in 2001 was 28%, which is quite low in comparison to developed countries. Total urban population has increased 11 of urban centers and emergence. No, 11-fold during 20th century. It is written 11-fold during 20th century. Enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. But the growth rate of urbanization has slowed down during last 2 decades. Yes. And then it is written classification of towns on the basis of population size. Could you see that? Yes, sir. So please go ahead with reading that. Census of India classifies urban centers into 6 classes as presented in table 4.2. Urban center. Can you present that table on the screen? Yes, sir. Please present that table on the screen. Sir, is it visible? Yes, yes. It is very much visible. Now, my students, they are seeing a circle where different segments are shown. And the major segment, I think, India distribution of urban population according to size class of urban centers. Yes. Okay. So please read further read. Please further read. Combinations. First, a town and its adjoining urban outgrowth. Second, 2 or more contiguous towns with or without their outgrowth. Third, a city and 1 or more adjoining towns with their outgrowth, together forming a contiguous spread. Yes. Examples of urban outgrowth are railway, colonies, university campus, port area, military cantonment, etc. Located within the revenue limits of a village or villages contiguous to the town or city. It is evident from table 4.2 that more than 60% of urban population in India live in class first towns. Out of 423 cities, 35 cities, urban agglomerations and metropolitan cities, urban. 6 of them are mega cities. Yes, sir. Six of them are mega cities with population over 5 million each. More than 1/5, that is 21% of urban population live in these mega cities. Among them, Greater Mumbai is the largest agglomeration with 16.4 million people.
Kolkata, Delhi, Chennai, Bangalore and Hyderabad are the other mega cities in the country. Functional classification of towns. Anuj, may I ask Aishwarya Gupta, could you reach that very page, Aishwarya? Yes, sir. Then now please you read after Anuj. Actually, when I'm opening the WhatsApp, then my audio isn't audible. Okay, then please don't worry. Because then Anuj, please you go ahead with your reading. Anuj, please you start reading the material. That is functional classification of towns. Anuj, can you hear me? Apart from their role as control, as central or nodal places, many towns and cities perform specialized. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please start. Apart from their role as central or nodal places, many towns and cities perform a specialized service. Some towns and cities specialize in certain functions and they are known for some specific activities, products or services. However, each town performs a number of functions on the basis of dominant or specialized functions. Indian cities town can be broadly classified as follows. Administrative towns and cities. In these towns supporting administrative headquarters of higher order and administrative towns such as Chandigarh, New Delhi, Bhopal, Shillong, Guwahati, Imphal, Srinagar, Gandhinagar, Jaipur, Chennai and etc. The next one is industrial towns. Industrial constitute prime motive forces of these cities such as Mumbai, Salem, Coimbatore, Modinagar, Jamshedpur, Hubli, Bhilai, etc. Next one is transport cities. They are the port of they may be port primarily engaged in the export and import activities such as Kandala, Kochi, Kozhikode, Visakhapatnam, etc. or hubs of inland transport such as Agra, Viria, Mughal, Sharai, Itarsi, Katni, etc. Next one is commercial towns. Towns and cities specializing in trade and commerce are kept in these cases. Kolkata, Saharanpur, Satna, etc. are some examples. Then after mining towns, these towns have developed in a mineral-rich area such as Raniganj, Jhagaria, Digboi, Ankaleshwar, Singrauli, etc. After that, Garishan's cantonment town. These towns emerge as Garishan towns such as Ambala, Jalandhar, Mahua, Mahu, that is called Mahu. Mahu, Bamina, Mahu, Dipendra Barot is there in the class? Dipendra Barot? Yes, sir. Have you been to Mahu? Yes, sir. मैं गया हूँ. वो आपके इलाके के एकदम बगल में ही है. मतलब चूंकि इंदौर होते हुए भी महू जाते हैं लोग, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा. हाँ, आगे पढ़िए आप. Sir, Mahu, Babina, Udhampur, etc. Then educational towns. Starting as a center of education, some of the towns have grown into the major campus towns such as Roorkee, Varanasi, Aligarh, Tilani, Allahabad, etc. Religion and culture towns. Varanasi, Mathura, Amritsar, Madurai, Puri, Ajmer, Pushkar, Tirupati, Kurukshetra, Haridwar, Ujjain came to prominence due to their religion culture significance. Then after tourist towns, Nainital, Mussoorie, Shimla, Pachmari, Jodhpur, Jaisalmer, Idam, Mandala, yes sir. Uti, Mount Abu are some of the tourist destinations. These cities are not static in their function. The function change due to their dynamic natures. Even specialized cities, as they grow into the metropolitan, becomes multifunctional, whereas industries, business, administration, transport, etc. become important. The functions get so intertwined that the city cannot be categorized in a particular functional class. So that is all. The rest is something like an exercise, testing the knowledge of the student who has studied it.
Which of the following towns is not located on a river bank? Agra, Bhopal, Patna, Kolkata. Can anybody tell? Agra, Bhopal. Bhopal. Bhopal is not on a river. Yes, of course. So I think just I am asking, is this material you think useful for studying in a very small manner, I should say, in a very small way, studying the evolution of towns and townships and village settlements? Is this material useful? Useful in the sense that a little bit useful. Although I know that on urbanization and settlements, immense literature is there. But this is something like जैसे ओपनिंग ऑफ द कर्टेन, जैसे कोई किसी ज्ञान पर से पर्दा जैसे कोई उठाए थोड़ा, कर्टेन, ओपनिंग ऑफ द कर्टेन, तो फिर बाद में सब बहुत सी चीजें पढ़ी जा सके। अब हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए ये सब बातें टाउन प्लानिंग की या इमरजेंस ऑफ टाउन की या विलेज सेटलमेंट की, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बच्चे लोग कि ये बताइए कि आपके हिसाब से क्यों ये जरूरी है कि व्यक्ति ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में, कैसे अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स इमर्ज किए, इनके बारे में जानना हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी के लिए क्यों जरूरी है? ये आपके प्रॉस्पेक्टस का अंग है, लेकिन मैं एक ऐसे आपसे पूछ रहा हूं, तो बताइए, कोई बच्चा बताइए, ऐश्वर्या बताइए आप कि टाउन्स के बारे में और विलेज के बारे में और उनके सेटलमेंट के हिस्ट्री के बारे में जानना क्यों जरूरी है हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी के लिए? सर, क्योंकि अगर प्रॉपर पैटर्न नहीं पता होगा कि किस एरिया में कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी कैसे रहती थी, कैसे नहीं रहती थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था, तो उसमें अगर ये चीजें हमें पहले से पता हो तो जैसे हिस्ट्री में तो हम यही करते हैं ना कि चीजें इमेजिन करते हैं या जो थोड़े थोड़े एविडेंसेस मिलते हैं उन पे एक मिथ बिल्डअप करते हैं, एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं और उसको हम एज पास्ट की हिस्ट्री बता के आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जब जितने हमें नहीं पता होगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में कैसे लोग रहते थे, तो हिस्ट्री तो फिर बिल्डअप ही नहीं हो पाएगी। तो अपने पास वो हिस्ट्री की बात तो आपने सही कहा, तो हिस्ट्री के लिए तो एक अलग हिस्ट्री डिसिप्लिन है, लेकिन हिस्ट्री के साथ जो हेरिटेज मैनेजमेंट है, हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी? हिस्ट्री के लिए तो ठीक है भाई, हिस्ट्री जानेंगे तो बहुत सी चीजें हिस्ट्री की जान जाएंगे कि भाई लोग थे, उनके क्या रिश्ते नाते थे, उनके मूल्य क्या थे, वो कैसे गतिविधियां कर रहे थे, उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या थी, उनके और भी सामाजिक संस्थाएं क्या थी, वो विवाह करके रहते थे या नहीं करके रहते थे, स्त्री पुरुष के बारे में उनके क्या दृष्टिकोण थे, ये सब बातें सब तो इतिहास के लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी को क्या चीज जानना चाहिए और किस बात की एम्फेसिस होनी चाहिए? हिस्ट्री से हेरिटेज मैनेजमेंट कैसे अलग है और कैसे जुड़ा हुआ है तो सब लोग जान रहे हैं, अलग कैसे है? सर, अगर हेरिटेज मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्टली इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, जो कि मोस्टली आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होता है, और इनटेंजिबल हेरिटेज भी होता है लेकिन वो दूसरे साइड में रखते हैं। अभी सिर्फ टेंजिबल हेरिटेज की बात करते हैं, तो सर मॉन्यूमेंट्स हो गए या जितने भी फिजिकल बिल्डिंग्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। तो अगर रूरल की बात करें तो चीजें बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होती थी, लेकिन अर्बन की बात करें तो वो पूरी टाउन प्लानिंग होती थी, चीजें काफी ऑर्गेनाइज होती थी, तो मे भी उसके वजह से वो यूजफुल हो जानना। ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ और सभी लोगों से, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मैं सोचे कि हमसे नहीं पूछ रहे। उज्ज्वल, सृष्टि, श्रेया, शिवांगी, शशि दुबे, पुष्पिता बनर्जी, नवनीत कुमार, कुमारी भारती, अर्चना, दीपेंद्र, अनुज, अंकित मौर्य, ये सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप सबके हिसाब से हेरिटेज मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है? क्या इसका महत्व है? एक तो सेटलमेंट्स के बारे में आप जान रहे हैं, फिर उसको कह रहे हैं कि हेरिटेज का उसका मैनेज किया जाए। हेरिटेज माने जो धरोहर है, जो प्राचीन काल से हमें जो मिली है, जो वस्तुएं जो टेंजिबल है, ठोस भी है, और जो
हमारी कल्पना जगत में है, उनका मैनेजमेंट करने की क्यों जरूरत है, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। और उस मैनेजमेंट करने में रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, टाउनशिप, इन सब के बारे में जानना क्यों जरूरी है हेरिटेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, बताइए। जिसके भी मन में आए वो बताइए। आप ऐश्वर्या ने आपने बहुत अच्छा बताया, और कोई बताना चाहे? सर। हाँ, उज्जवल बताइए। हाँ सर, तो इन सब सेटलमेंट और सिविलाइजेशन से हमें प्राइमरी डाटा मिलता है सर, जिसके आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चीज फेलियर हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है, जिससे कि हमें न्यू चीजें जनरेट करने की मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी सर। हाँ, ठीक बात है। हाँ, इस चीज को देखते हुए हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे तो हो सकता है और अच्छा बता दें आप। हेरिटेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट की क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए? आइडियोलॉजी शब्द सुना है आपने? हाँ सर। आइडियोलॉजी मैंने जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, संसार को जान रहे हैं, बहुत सारी, इसकी आइडियोलॉजी की, हेरिटेज मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेड आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? एक तो आइडियोलॉजी है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जो आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, इस पर आप बताइए जरा। आप सर प्रश्न समझ गए? जी हाँ जी, सर। बोलिए। अच्छा सर, इसको हम साइकोलॉजी से कोरिलेट करना चाहेंगे सर जी। कि जैसे साइकोलॉजी का आइडियोलॉजी ऐसे आया कि जैसे कि हमारी चेतना वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जी, तब हम इस चीज को साइकोलॉजी का इन्वेंशन किया सर। और हेरिटेज के लिए ऐसे हम कहेंगे कि वहाँ मतलब हम अपनी चीजें, धरोहर को संरक्षित नहीं कर रहे हैं और सिविलाइजेशन के नाम पर हम उस चीज को छोड़ते जा रहे हैं सर। इसलिए हेरिटेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सही है सर। शिवांगी आप बताइए, हेरिटेज मैनेजमेंट की क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए? शिवांगी, आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. हाँ, आप बताइए कि हेरिटेज मैनेजमेंट की क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए? जी सर, पहला जो आपका क्वेश्चन था सेटलमेंट को लेके, तो सर मैंने उस टाइम पे लगा कि ये हो सकता है सर, जो सेटलमेंट्स का हेरिटेज मैनेजमेंट में क्यों हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सर हेरिटेज मैनेजमेंट में एक पार्ट कह सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट भी आता है। तो हो सकता है कि सर उसमें कल्चरल स्टडी को जो है हम हेरिटेज मैनेजमेंट में एज ए सेटलमेंट पढ़ सकते हैं, उसकी मतलब सेटलमेंट की कल्चरल जो कल्चर होता है उसका, उसके स्टडी के लिए। और सर हेरिटेज मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी के बारे में तो सर फर्स्ट थॉट तो यही आता है कि जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं जो बनी हैं पहले से, तो सर पहला चीज तो उनको प्रिजर्व करना ताकि हम और आगे जो भी आए उनको देख सकें और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी टेक्निक्स, उसका साइंटिफिक वैल्यू वो जान सके, और हम जो आज डेवलप कर रहे हैं या जो फ्यूचर में हम डेवलप करने वाले हैं वो और उन चीजों से जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उसमें क्या डिफरेंस है या हम कितना बढ़ चुके हैं आगे, या इन चीजों को सर हो सकता है कि इसमें हम आइडियोलॉजीज की ले सकते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट से। बहुत ठीक कहा आपने कि हेरिटेज मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी ये है कि कैसे आने वाले जनरेशन्स को हम ये बता सकें कि किस तरह से किन रास्तों को तय करके हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आज कोई बच्चा जन्म ले, आज जन्म ले, तो उसे ये बात का आभास होना चाहिए, जानना चाहिए कि बहुत प्राचीन काल में मनुष्य कैसे रहते थे, उनके ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या थे। और एक जिज्ञासा के लिए भी, अगर मान लीजिए इसका पर्पस हो गया जिज्ञासा हो, और दूसरा पर्पस ये भी हो सकता है कि एक जिज्ञासा के साथ साथ अगर आपके पास बहुत प्राचीन हेरिटेज के साइट्स हैं तो आप उसको, थोड़ा इसमें व्यापार का बात आ जाएगा, लेकिन आने में क्या बुरा है कि आप लोगों को बात बता सकते हैं कि देखिए हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है, हमारे इस सभ्यता का ये प्रमाण है और ये हमारे सेटलमेंट्स हैं और ऐसे ऐसे हम लोग रहे। और इसके आधार पर आप ये कहने में कोई मतलब हमको संकोच हो रहा है कि इसी के लिए बस हेरिटेज पढ़ा जाए कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए कोई कहे भाई हम हेरिटेज इसलिए पढ़ रहे हैं और हेरिटेज को इसलिए प्रिजर्व कर रहे हैं कि इससे हमारे टूरिज्म पर बहुत बढ़ाव पड़ेगा। ठीक बात है कि हमारे टूरिज्म पर कोई भारत में विदेश से या बाहर से या भारत में ही लोग आते हैं,
तो उनको आप बता सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारे हेरिटेज की ये बिल्डिंग्स हैं, या हमारे हेरिटेज का क्वाइंस है, ये हमारे हेरिटेज के भवन हैं। तो एक तो इसकी आइडियोलॉजी ये है कि हेरिटेज के माध्यम से हम अपनी एक कंटिन्यूटी जो है, एक बारंबारता या कह लीजिए, या सातत्यता, संस्कृत में सतत से सातत्य शब्द बना है, हमारी सातत्यता बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अब जैसे कोई कहे कि भाई आप अपने घर में जो सामान यूज कर रहे हैं दैनिक जीवन में, आपके परिवार में वो सामान कब से यूज करना शुरू किए, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर में, गांव में आजकल अभी भी एक ऐसी चीज यूज होती है डेली, जिसकी ओरिजिन अगर आप देखना चाहें, ओरिजिन तो नहीं लेकिन वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी वह चीज यूज की जाती थी। तो ऐसे मैं पूछ रहा हूं बच्चों से कि क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज थी जो घर में आज भी, अब थोड़ा वैज्ञानिक हो गया है, हम लोग उसको नहीं यूज कर रहे, लेकिन जी हम बताएं? हाँ बताइए सर, काजल। जी जी और बताइए। ये जो, हाँ बताइए। मैच स्टिक फायर, मैच स्टिक जो माचिस है, पकी हुई ईंटें का, पकी हुई ईंटों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। जैसे आपके हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो अर्बन सेंटर है उसमें पक्की ईंटों का सर मृदभांड, सर जी, मृदभांड भी प्रयोग में आते हैं। मृदभांड के आधार पर सभ्यता का नामकरण भी लोग करते हैं कि प्राचीन काल में ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है या गेरुए रंग का पॉलिश किया हुआ वेयर है, इसके आधार पर जो सभ्यता किस सन की सभ्यता है। लेकिन आप लोगों को मैं ऐसे बताऊंगा तो आप कहेंगे कि अच्छा ये बात है, आपके घर में सबके। हम बताइए सर, मोर्टार पेस्चर जिसको ओखली बोलते हैं। हाँ, ओखली भी है, बहुत प्राचीन है, बहुत सही कहा आपने। इसी के साथ आप जो सिल लोहा आपके घर में होगा, आप लोगों ने अपने घर में सिल लोहा का प्रयोग देखा है? सर उसको भी तो वही बोलेंगे ना, मोर्टार पेस्चर। हाँ, ये एक ओखली तो एक होता है, ये जमीन में थोड़ी गड़ी होती है और मूसल से उसमें ओखली में ऐसे करके उसको मतलब जी सर, आप सही कह रहे हैं। वो ओखली होता है, जिसे ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर, ये बताते हैं। तो ओखली तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ सिल लोहा जो है, सिल होता है लोहा, आजकल घरों में सिल लोहा का यूज नहीं करके मिक्सी वगैरह आ गई है सब, और टीवी वगैरह पर प्रचार भी करते हैं कि ये मिक्सी ले जाइए, बड़ा पावरफुल है, 90 मिनट तक चलेगी। तो प्राचीन काल से बहुत लंबे समय तक आज भी हमारे भारतवर्ष में लगभग सभी घरों में, जो पुराने किस्म के घर हैं, आधुनिक घर में भी जो रखते हैं, खासतौर से पूजा के लिए जब विवाह वगैरह होते हैं, तो जिन भी चीजों की पूजा होती है इसमें आप लोग देखते होंगे कि शिव और लोहे की भी पूजा होती है। एक सूप होता है, सूप आप लोग जानते होंगे, जिससे कि आप कोई भी अनाज है उसमें कोई ऐसे टुकड़े हैं उसको अलग करने का काम करते हैं। जो अनवांटेड चीजें अगर मिल गई है आपके चावल में या गेहूं में, तो ये सूप वगैरह हुए, ये सब भी बहुत प्राचीन काल से आपके यहाँ चले आ रहे हैं लगातार यूज में। आप कह सकते हैं कि ये जो फायर है, FIRE जो आपने बताया, फायर, अग्नि भी हमारे यहाँ परिवार में बहुत मतलब बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसको कि हम कहते हैं कि एक जमाने में, अब तो जब से माचिस आ गया है तो भाई आप अगर आग बुझा दी आप, लेकिन एक समय में घर में आप पढ़ेंगे साहित्य तो एक जो अग्नि होती थी वो लगातार जनरेशन से जलती आ रही थी। मतलब एक जनरेशन में अग्नि जली, फिर वही अग्नि दूसरे जनरेशन में जली, फिर तीसरे जन में, मतलब लगातार अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब ये तो बताना पड़ेगा आपको, तो अब तो कहाँ सब किसी के परिवार में लगातार कोई अग्नि जला छोड़ा है। हाँ, कुछ घरों में मैं देखता हूँ कि जो दीपक जलता है घर में, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग दीपक अपने घर का बुझने नहीं देते हैं।
किसी के घर में 10 वर्ष से दीपक जल रहा है तो कई जाने को कहते हैं कि मेरे घर में ये 10 वर्ष से दीपक जल रहा है और ये बुझा नहीं, मैं तुरंत एक नया दीपक उसी के साथ उसी के लव से जला देते हैं। या आप लोगों ने लव के ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेम का, कैसे जो आप ओलंपिक वगैरह में एक खास ओलंपियाड से या ओलंपिक जो प्लेस है यूनान का, वहां से एक अग्नि जो है जाती है और उसको अग्नि को ले जाकर के उस स्थल पर ले जाते हैं जहां पर ओलंपिक गेम शुरू होने वाले। तो इस तरह से आप अपने हेरिटेज मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, हेरिटेज मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी है कि आप भूल न जाएं कि आपकी ओरिजिन क्या है। अब कई बार आप देखेंगे कि खास तौर से आधुनिक समाज में, जिसे हम लोग इतिहास में कहते हैं पूंजीवाद का प्रारंभ और औद्योगिकीकरण, जो आधुनिक औद्योगिकीकरण है, जिसको कहते हैं 1790 से जो आधुनिक औद्योगिकीकरण पूरे विश्व में आता है, जिसको कहते हैं हम लोग टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। एक टेक्नोलॉजी तो रही लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन कहा। जब भी रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ होता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो उसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन खासतौर से इंग्लैंड में जब भाप की ताकत को, जो स्टीम इंजन होता है, उसके प्रयोग करके जब वहां पर बड़े बड़े जो उद्योग खड़े किए गए और लेबर लोगों को बुला करके एक छत के नीचे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लेबर प्रोडक्शन में लगे और प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ गया और बढ़ करके फिर इतना बढ़ गया, पहले कोई चीज प्रोड्यूस होती थी घरों में और लोग जा जाके घरों से सामान इकट्ठा करके फिर बाजार में बेचते थे। लेकिन टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन से और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लार्ज स्केल पर चीजें प्रोडक्शन होने लगी और इसने समाज में बहुत बड़े परिवर्तन को उपस्थित किया। परिवर्तन को उपस्थित किया मतलब बड़े माइग्रेशंस हुए विश्व में। आप देखेंगे अर्बन फॉर्मेशन की जो स्पीड है, अगर कोई बच्चा इस बात को अध्ययन करना चाहे कि अर्बन फॉर्मेशन के या अर्बन डेवलपमेंट की स्पीड क्या है, हर चीज की स्पीड होती है। जैसे अभी आपने आंकड़े, अभी आपके सामने सब डाटा दिखाया गया कि अर्बनाइजेशन 1901 से लेकर के कैसे ग्रोथ किया है, तो उसके बारे में उन्होंने दिखाया कि 28% अर्बनाइजेशन, 30% अर्बनाइजेशन। जैसे भारत का अर्बनाइजेशन मान लीजिए 30% को, तो इस 30% अर्बनाइजेशन, अगर मैंने कहा कि भारत में अर्बनाइजेशन 30% है, इसके माने हुआ कि 30 पूरी पॉपुलेशन जो इंडिया की है 1,30,00,000 में से 30%, एक मतलब करीब 35-40 करोड़ जो है जनसंख्या शहरों में रह रही है, अर्बन सेंटर्स में। बाकी अभी भी 60-70-80 करोड़ जनता है वो देहात में रह रही, गांव में रह रही है। तो इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। एक जमाने में अर्बनाइजेशन में जब आप देखेंगे तो शहर जो है वो बहुत कम संख्या में आपको दिखाई देंगे, अर्बन सेंटर पूरा का पूरा रूरल सेटलमेंट्स ही है, लेकिन उन रूरल सेटलमेंट्स में भी अर्बन सेंटर्स दिखाई देते हैं। अर्बन सेंटर का जैसे मैंने पहले की क्लास में आप लोगों को बताया था, अभी आपको नोट्स दिया उसमें भी आप देखेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी अर्बन सेंटर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि किस तरह से वहां पर वस्तुएं विभिन्न स्थानों से आकर के वहां इकट्ठा होती हैं, फिर उस स्थान से विभिन्न जगहों पर उनको बेचा जाता है। यानी इंटेंस कॉमर्शियलाइजेशन, एक अत्यधिक वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया। आप अगर पूरे प्राचीन काल से लेकर अब तक वाणिज्य की प्रक्रिया को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि किस तरह से वाणिज्यीकरण जो है वो अर्बनाइजेशन को ग्रोथ करता है। जब जो नोट हमने आपको भेजा है उस नोट में उन लोगों ने कई प्रकार के जो है अर्बन सेंटर्स को बताया है। ट्राई बट इट इज नॉट कनेक्टिंग, सॉरी सर कैनॉट कनेक्ट टू द लिंक। आप ऐश्वर्या क्या ऐश्वर्या है इसमें लिंक में? नहीं है लगता, चली गई। उन्होंने मैसेज किया कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो एक बार फिर लिंक पर कनेक्ट करिए, ज्वाइन करिए तो हो जाएगा। उसको कौन सा बहुत मुश्किल है, बट शी इज अवेलेबल टू हियर मी।
एक सेकंड देखते हैं, बस आप बात करते हैं आपसे। अच्छा, तो बहरहाल these are the petty problems. If suppose someone is not getting connected, someone may try to connect it. It is not a very difficult thing. Connectivity, maybe in the hostel connectivity is there. Other students are there in the hostel. They have got connected. But I don't know how she is not getting connected. हाँ बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं? Sir, hostel Wi-Fi is not working. अरे ऐसा कैसे होगा? आलोक जी है क्या? आलोक जी सर ये डीन ऑफिस गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये कैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा। एक बार फिर से रीस्टार्ट करके ज्वाइन करिए, रीस्टार्ट कर लेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। जो गूगल एड्रेस हमने दिया उसी क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ परमिशन के लिए आएगा, हम उसे परमिट कर देंगे। ठीक है सर अश्वरा है नहीं तो उसको ये नहीं सुन पा रही है। सर वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, तो हो सकता है उसकी में नेट ना हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो है इनके में नेट अभी तो ऐश्वर्या आप हॉस्टल में है ना, तो वो तो सभी जो हॉस्टल में से सब तो अच्छा सर हम लोग तो पर्सनल नेट यूज कर रहे हैं ना। अच्छा आप लोग पर्सनल यूज कर रहे हैं। यस सर। बीएचयू का वाईफाई जो है कभी काम करता है कभी नहीं भी करता है ना, ऐसा क्यों? सर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब हो रहा है फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप। सर मेरे साथ भी हुआ तो इसलिए मैंने अपना नेट ऑन कर लिया। आप अपना नेट ऑन करके ज्वाइन करिए ऐश्वर्या, कोशिश करिए। तो ये है कि हम लोग जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट एंड व्हाई द स्टडी ऑफ अर्बनाइजेशन and rural settlement, why it is important from the perspective of heritage management. Let me say something about the ideology of heritage management. As you, some of the students like Shivangi just told, that the heritage management has the ideology that let us preserve the things which are of ancient origin or medieval origin or sometimes about 100 years or more having their history. Let us preserve it. First aim should be let us preserve it for the coming generations or for those younger generations who are not able to, who cannot imagine or think about the things which happened in the past. So that would be, I think, one desirable ideology. One desirable ideology. You know, desirable ideology means that is something कि भाई ये ऐसे है तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये desirable है, this we want. आप देखते होंगे कि इधर बीच हमारे देश की सरकार ने, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज के मैनेजमेंट पर और हेरिटेज को लेकर के बहुत जोर देना शुरू किया। हेरिटेज को लेकर के जो आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है, उस आइडियोलॉजी में आप लोगों को क्या कुछ खतरे भी दिखते हैं, कोई संघर्ष के बिंदु भी दिखते हैं? अगर हेरिटेज मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी को एकदम लागू किया जाए तो उसके गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बताइए शिवांगी, हेरिटेज प्रिजर्वेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अब आप कहेंगे कि आप पढ़ा रहे हैं हेरिटेज मैनेजमेंट, हम लोगों को तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पूछ रहे हैं, तो जानना चाहिए, बताइए। अगर कोई बात है, कोई और बच्चा भी बताए कि हेरिटेज मैनेजमेंट के बहुत आग्रह करने के कॉन्फ्लिक्ट कहाँ खड़ा हो सकती है। अगर कोई बहुत हेरिटेज मैनेजमेंट का आग्रह करे तो समाज में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो सकती है, बताइए उज्जवल, बताइए। सर मैं सोचता हूँ कि हेरिटेज मैनेजमेंट करने तो हम पुरानी चीजों को याद दिलाते हैं सर, और हम न्यू लाइफ स्टाइल से उसको
कंपेयर नहीं कर पाएंगे सर। मतलब आप सब बच्चे बड़े इनोसेंट हैं। सर ये हो सकता है कि इंडिया में इतना हेरिटेज है कि उसको प्रिजर्व करना ही बहुत मुश्किल है और गवर्नमेंट का मतलब जो रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंस होगा और सोसाइटी में ये होगा कि किस रिलीजियस के चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। जो ऐसा ही कंडर में आ जाएगा उसका अच्छा होगा, जो नहीं आएगा उसको तो और खराब होता जाएगा। हाँ नहीं सही करें। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई इलाहाबाद का नाम प्रयाग होना चाहिए क्योंकि प्रयाग हमारा पुराना हेरिटेज नाम है। अब उसमें कई लोग ये कह सकते हैं कि नहीं प्रयाग तो है लेकिन इलाहाबाद भी तो नाम है। लेकिन चूंकि जो लोग इलाहाबाद के पक्ष में बातें कह सकते थे तो ऐसा नहीं कि बेकार मुसलमान लोग ही कहेंगे, लेकिन और भी जो लोग कह सकते थे उनकी संख्या बड़ी माइनॉरिटी में है। और मेजॉरिटी जैसे ही सरकार ने डिक्लेयर किया कि इसका नाम प्रयाग होना चाहिए तो लोगों ने कहा हाँ ये तो प्रयाग तो है ही, प्रयाग स्टेशन भी था वहां, लेकिन उस पूरे शहर का या पूरी जिले का नाम प्रयाग डिक्लेयर किया जाए। प्रयाग नाम ऐसा नहीं था कि प्रयोग में नहीं था, प्रयाग था। तो इसी तरह से अब कोई हेरिटेज की बहस करने लगे और कहे कि जितने भी हमारे मंदिर थे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जिन मॉन्यूमेंट्स पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, उन मॉन्यूमेंट्स को अब खाली कराया जाए क्योंकि वो हमारे हेरिटेज का अंग है, पुराने हमारे हेरिटेज का अंग है। तो आपको यद्यपि इस तरह का जो हेरिटेज का जो मूवमेंट है, अगर आप देखेंगे तो विगत करीब इधर बीच आजादी के बाद, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हेरिटेज को लेकर के एक खास बिंदु पर बड़े जबरदस्त आंदोलन हुए। आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक संघर्ष जनरेट करने वाला कौन सा हेरिटेज का आंदोलन रहा जो हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए खड़ा हुआ, जिससे सबसे अधिक हिंसा हुई होगी? अनुमान लगा करके बताइए बच्चे लोग। अयोध्या राम मंदिर को के हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो एक नए ढंग का पूरा भारत में एक नया एक संगठन ही कायम किया गया, जिसमें नए नए नारे भी गढ़े गए। उसमें का एक बड़ा नारा, बड़ा पॉपुलर नारा था और अभी भी वो है कि गर्व से कहो कि हम, क्या नारा था वो बताइए? गर्व से कहो कि हम क्या है, गर्व से कहो कि हम हिंदू। या फिर लोगों ने कहा कि बच्चा बच्चा राम का, जन्म भूमि के काम का, ऐसे करके उन लोगों ने नारे दिए कि सभी उसको जन्म भूमि के लिए है। फिर 92 के 6 दिसंबर को वहां जो स्ट्रक्चर था, एक जो वो भी एक हेरिटेज स्ट्रक्चर था, 1528 का स्ट्रक्चर था, 1528 का था, उस स्ट्रक्चर को जो है तोड़ दिया गया और उस स्ट्रक्चर की जगह अब एक बहुत भव्य जो है राम मंदिर बन रहा है। तो हेरिटेज के सवाल को खड़ा करने पर, जैसे आपके हेरिटेज में आपने सवाल खड़ा कर दिया तो खैर लोग मान भी रहे कि गाय जो है वो आपका एक पवित्र, आपका एक क्या कहिए पवित्र जानवर है? एक काऊ जो है एक आपका सेक्रेड एनिमल है। तो इसको लेकर के आपको प्रिजर्व करना है और इसके प्रिजर्वेशन के लिए ये एक अपने आप में इंटेंजिबल बात है, लेकिन इसकी टेंजिबिलिटी ये है कि जब इसके लिए मूवमेंट आप करेंगे, अब खैर भारत में तो मूवमेंट सेटल भी हो गया। सेटल ये हो गया कि आपके संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी गाय और गोवंश की रक्षा की बात कही गई है, लेकिन यह अपने आप में कई जगहों पर एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। तो कोई कह सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है तो जन्म दे, भाई हमारा ये एक हमारी हेरिटेज का पार्ट है, हमारे हेरिटेज का अंग है, तो हम उसके लिए खड़े होंगे। तो ये एक हेरिटेज के बारे में बात कहना एक तरह के समाज में कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करता है, लेकिन कई बार लोग ये बात कहते हैं, इतिहास के और समाज के अध्ययन करता कहते हैं कि कई बार क्या अक्सर समाज में डेवलपमेंट का जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स माने जैसे कई बार डायनामो होता है जिससे ऊर्जा निकलती है, डायनामो जो बिजली पैदा करने वाला डायनामो होता है। तो समटाइम्स द कॉन्फ्लिक्ट इज द डायनामिक्स और द डायनामो और द एनर्जी सप्लाइंग machine of the society. When you enter into certain conflicts for certain purpose, then I think you then generate immense energy
immense energy is generated. That energy may be in the direction of destruction, and that energy may be in the direction of construction. Like I should just ask my students as to how they see the changes which are taking place in Varanasi in the name of connecting Lord Shiva's temple, which was constructed by Indore Queen Rani Ahilyabai in the 18th century. How do you compare and how do you value or weigh? How do you give weightage or how do you estimate the changes which are taking place for the last more than 4 years around Kashi Vishwanath, leading to just removing those obstacles and buildings which were there more than 200 to 300 years old. Buildings are there which were removed. And you have learned from the class of Madam Java that how we have in India the Preservation of Ancient Monuments Act. Monument and Preservation of Ancient Monuments Act, that is there, an act from the time of Lord Curzon. And in independent India also there are laws which are framed by Indian Parliament. So how do you think these attempts, particularly in Varanasi, how do you evaluate these attempts in the context of heritage management? बताइए, हेरिटेज मैनेजमेंट के संदर्भ में आप बनारस में हो रहे एक प्राचीन शहर के परिवर्तनों को किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये हेरिटेज मैनेजमेंट हो रहा है या हेरिटेज मैनेजमेंट का को मतलब अगेंस्ट हेरिटेज मैनेजमेंट? बताइए बच्चे लोग, आप लोग कोई बताए कि बनारस के एक प्राचीन शहर में जिसके बारे में लोग कहते हैं अभी यूनाइटेड नेशंस में अप्रोच किया गया है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाए, उसके बारे में किस तरह से जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? आप लोग, हमको लगता है सब लोग शांत है बच्चे लोग, तो अभी सोच करके बताएंगे। तो सोच के बताइएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग हमें वही कर दीजिए। और आप लोग प्रश्न समझ गए ना? बस हम तो ये पूछेंगे कि क्या प्रश्न समझ गए? उज्ज्वल, प्रश्न क्लियर है हमारा? यस सर, क्लियर है। हाँ, कि आप खुद कैसे सोचते हैं कि एक पुराना शहर जो बनारस की पहचान है, उस पुराने शहर की पुरातनता को छोड़ करके एक ऐसे ढंग से शहर को बनाया जाए कि लगे जैसे कि एक बहुत मॉडर्न शहर है। मॉडर्न, तो कई बार लोग कह सकते हैं कि आपका ये मॉडर्न शहर बन गया, आपके काशी की पहचान जा रही है, पहचान मिट रही है। इस सवाल का कैसे उत्तर देंगे कि क्या काशी की नहीं पहचान बनी हुई है? क्या काशी से तमाम जो पत्थरों का जंगल बन गया था काशी विगत 500-600 वर्षों में, काशी एक पत्थरों का जंगल बन गया। पत्थरों का जंगल मतलब है बहुत से मकान बन गया। गूगल अर्थ से आप काशी को गूगल अर्थ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कैसे पत्थरों का जंगल बन गया है। ठीक है? यस सर। तो किस तरह से आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? सर जी, हाँ बताइए जी। सर, मैनेजमेंट का एक पॉइंट है कि उसमें साइंटिफिक व्यू नहीं होना चाहिए सर जी। इसी कारण बस इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और जो भी हमारी गवर्नमेंट है। हाँ सर, तो ये टाइम टू टाइम मतलब इस समय के अनुसार ये बदलना चाह रहा है। जैसे कि जालियांवाला बाग के साइड पे भी उन्होंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हैं के पॉइंट से। हाँ, तो जलियांवाला बाग का जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को लेकर के
बड़े लोगों ने चर्चा किया कि भाई आप ये जो परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं। वो परिवर्तन उनकी जो प्रिजर्वेशन जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को कैसे जो है, क्या है वो प्रिंसिपल प्रिजर्वेशन के। आप लोग इतने दिनों से कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की लिमिट क्या होती है, क्या लिमिट है। मैं आपको एक बात से इशारा कर रहा हूं, अगर आप आज रोम में चले जाएं और वेटिकन में चले जाएं, वेटिकन नाम सुना आप लोगों ने, वेटिकन सिटी? यस सर। बताइए बच्चे। वेटिकन कहते हैं जहां पर पोप का निवास स्थान, ठीक है? हाँ बोलिए आप। ठीक है हाँ, तो वेटिकन में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको वेटिकन शहर पूरा, लोग पहले तो वेटिकन शहर को घूमने के लिए कार से नहीं जा सकते, स्कूटर से नहीं जा सकते। कम से कम मैं ऐसे अनुमान लगा रहा हूं कि कम से कम 50 स्क्वायर किलोमीटर में वो पूरा वेटिकन शहर है। वो अपने आप में एक अलग राज्य है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक अलग राज्य की मान्यता दी है, वो राज्य है ये। जैसे आपका इंडिया राज्य है, एक स्टेट है, वैसे ही वो वेटिकन भी एक स्टेट है जहां का जो स्वामी है, स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं समझाने के लिए बस आपको, वो स्वामी आपको उनको यूनाइटेड नेशंस की एक रिकॉग्निशन मिली हुई है। ये हमने, आप लोगों को दिख रहा है ये जो हमने अभी शो करना चाहा? बताइए बच्चे, बच्चे लोग, आप लोगों को ये दिख रहा है? यस सर। नो सर। है वेटिकन सिटी। ये गूगल मैप वेटिकन सिटी पर पहुंचा हुआ है, आप सब देख पा रहे हैं बच्चे लोग? नो सर। किसी को नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हमें लगता है हम एक मिस्टेक किए होंगे। क्या है कि स्क्रीन का एक शेयर होता है, हमें लगता है स्क्रीन शेयर नहीं किए होंगे, वो हम कर देंगे तो आपको दिखाई देगा। अब दिखाई दिया? यस सर। ये वेटिकन सिटी है जो स्क्वायर बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ना स्क्वायर, एक स्क्वायर जैसा उसमें मैप बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं? हाँ या ना बोलिए, ना बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। यह सब दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, बच्चे लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं। ये पूरा का पूरा जो वेटिकन सिटी बना हुआ है, देख रहे हैं कितना। लेकिन इस वेटिकन सिटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सिटी जो है जैसा आज से करीब 600 वर्ष पहले था, एग्जैक्टली वैसा ही ये बना हुआ अभी भी। और इस शहर में घूमने के लिए कोई कार वगैरह को लोग नहीं यूज करते, सबको साइकिल से जाना पड़ता है और सब लोगों को वहां पर टिकट लगता है। और वेटिकन शहर, जो भी कोई यूरोप जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि आप कैथोलिक चर्च को मानने वाले हो, आप ऐसे कोई भी विजिटर हो, आप वहां जाइए और वहां विजिट करिए एक एक इलाके की। आप लोगों में से किसी बच्चे को वेटिकन शहर के बारे में पढ़िएगा, क्या जो यूरोप का जो रेनेसां वगैरह उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्ट 1 में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में यूरोप का पुनर्जागरण वगैरह सब बच्चे पढ़े होंगे। तो उसमें कैसे पोप का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कैसे वहां आर्ट और कल्चर ये सब का डेवलपमेंट होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर वेटिकन सिटी का जो अट्रैक्शन है उसको जिस तरह से उन लोगों ने बना के रखा है, वो अट्रैक्शन इसलिए बना के रखा है, उसने तोड़ फोड़ नहीं किया है। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि काशी में गंगा जी के साथ विश्वनाथ जी को जोड़ रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वहां जाने में लोगों को गंगा स्नान करने के लिए बहुत आसानी होगी।
और आप ये कह सकते हैं कि गंगा जी काशी की अधिक पहचान है। तुलनात्मक रूप से ये जो पत्थरों का शहर है, पत्थर और ईंट का जो शहर है भारत और बनारस, इसकी तुलना में गंगा यहाँ की पहचान है। तो कह रहे गंगा से, और शिव भी यहाँ की पहचान है, क्योंकि बहुत आपको पता है ना, आप बच्चे लोगों को, कि शिव की जो आराधना होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शिव की आराधना करते थे, या उनके प्रतीक के रूप में शिवलिंग होते थे, या शिव योनि, माने वो लिंग और योनि की आराधना करते थे। वो एक बहुत प्राचीन आराधना का जो बिंदु था, वो शिव जी के नगरी में भी वो दिखाई देता है। तो प्राचीनता उसको कह सकते हैं, न कि यहाँ के बहुत से जो पत्थरों का जंगल है। तो कोई अब ऐसे करके तर्क अगर जो लोग परिवर्तन कर रहे हैं उनके पक्ष में देना चाहे तो कह सकता है कि काशी का जो पुराना भूगोल है, जिसको कहते हैं स्कंद पुराण का जो भूगोल है, जिसमें कि काशी खंड है, उस काशी खंड में किस तरह से काशी की चर्चा है, कि काशी में कोई शहर की मकान की निर्माण की चर्चा नहीं है। आप सब लोग काशी खंड इंटरनेट पर ब्लॉगों का पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वह एक ऐसा शहर है काशी, या एक गांव है जो कई नदियां उसमें बह रही। गंगा जी तो है ही, गोदौलिया जिसे कहते हैं गोदावरी नदी कहते हैं, फिर अस्सी नदी तो जानी रहे कल नाला हो गया है, फिर बीच में जो मैदागिर कहते हैं वो मंदाकिनी नदी बह रही है। तो इस तरह से आप एक एंशियंट प्रिजर्वेशन, हम हेरिटेज मैनेजमेंट के लोग कहां तक प्रिजर्वेशन करेंगे। अच्छा, भारतवर्ष में जो एक्टिविज्म होता है, एक्टिविज्म कहते हैं एक्टिव होकर के काम करना। एक कहते हैं, एक शब्द होता है लीगल एक्टिविज्म। लीगल एक्टिविज्म शब्द सुना आप लोगों ने? बताइए भैया लोग, आप लोगों ने लीगल एक्टिविज्म वर्ड सुना है? हाँ, जैसे लीगल एक्टिविज्म ये होता है कि जो आपको जावा मैम पढ़ा रहे कानून, उस कानून के अंतर्गत पढ़ करके अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में जा करके ये कहें कि ये कानून ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बनाया है कि हमारी जो 100 वर्ष से पहले की जो वस्तुएं हैं उनमें चेंज नहीं कर सकते हैं आप, तो बनारस में या कहीं भी जो पुरानी वस्तुएं हैं उनके परिवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन कोई बहुत आस्था का विषय होगा तो उसमें हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय दूसरे ढंग से करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा। कहा कि भाई बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि है ये किसकी है, इस पर हम लोग कोई बयान नहीं देंगे। हम बस ये फैसला करेंगे कि ये आस्था का है, यहाँ राम पैदा हुए हैं, इसलिए हम इसको जो है वह इस पर हस्तक्षेप न करके हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो हिंदू लोग हैं, या जो रामलला का जो ट्रस्ट है, या रामलला विराजमान कहते हैं, उनको देते हैं। कल हमने जो आपके सामने आज लेक्चर दिया वो इसलिए भी दिया, जो भी लेक्चर देते हैं उनके मन में ये रहता है कि हमारी बात बच्चों को पसंद आई। भाई पसंद के लिए तो लेक्चर हम लोग देते नहीं, लेकिन फिर भी आपको पसंद आई कि कैसी लगी आप उसको बताइएगा। और आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं, और फिर आप लोग को कोई बीच में अगर कोई बात भी पूछनी होगी टाउन प्लानिंग, विलेज सेटलमेंट्स के संदर्भ में, और जो क्वेश्चन मैंने रेज किया तो आपका स्वागत है, आप कल पूछिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आज अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जैसे, लेकिन यह है कि आप लोग थोड़ा क्लास में रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है, और जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनको लगता है भाई क्लास में है तो एक अच्छी बात है। और क्लास में जब बच्चे नहीं रहते हैं तो टीचर लोगों को थोड़ा उदासी भी आने लगती है कि भाई ये लोग नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं अपनी लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोगों को बहुत शुभकामना भी दे रहा हूँ, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल आप क्लास में आए और फिर आप
तो आप लोगों को कुछ पूछना है अभी कि बस क्लास यही समाप्त करते हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से बात होगी, ठीक है? बोलिए भाई, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्लास किए इसके लिए भी धन्यवाद, और आप क्लास में पार्टिसिपेट किए इसके लिए धन्यवाद। और फिर कल आपसे बात होगी, और कोई भी सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 1 घंटा पूरे बच्चों को जोड़े रखा और बहुत अच्छा चीजों को बताया, बच्चे और भी चीजें जाने और बहुत ही मीनिंगफुल चीजें आपने समझाई गूगल ऐप के द्वारा या और भी चीजें काफी खाने के बारे में आपने बताया। बहुत सही कहा। जैसे कई बार बच्चे लोग खुश हो जाते हैं, टीचर लोग तारीफ कर देते हैं, मैं आप अच्छा बोले, वैसे टीचर लोग भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। बच्चे लोग कहते हैं कि आज के क्लास में हमको थोड़ी जानकारी मिली और हम इसके लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। तो टीचर जो है, मुझे लगता है कि आपको जितना भी हम लोग सुने, जितनी बार भी सुने, 1000 बार करोड़ों बार भी सुने तो भी कम हो, क्योंकि आपका समय मिलना ही बहुत बड़ी बात है हम लोग। चलिए, आपने इतनी तारीफ कर दिया कि गुरुजी खुश हो गए। और फिर कल जो है क्लास करते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।